ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਖਿੱਚੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਦਿਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਐਮ ਸੀਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? 2012 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ ਨੂੰ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਸਰ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਤਨ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਏਪੀਟੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਬਾਕੀ 2-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰ ਆਈਏਪੀਟੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ 올림픽ਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ 올림픽 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਏਪੀਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਜੈਮ ਨੇ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਹੂ ਟੀਚਸ ਬਿਯੋਂਡ ਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਰੀਅਲੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰ ਆ। ਸਰ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਬlesed ਟੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬlesed ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਥਡ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਸਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੀਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਅਲੀ। ਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਰਤਨ ਔਨ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਹਾਂ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਟਅਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ।
हाँ जी स्टूडेंट्स रेडी करें शुरू करें ये मोस्टली ਆਪਾਂ हिंदी रखिए पंजाबी रखिए पंजाबी रखिए ठीक है अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ सेटल हो जाओ मैडम मैडम हाँ नहीं चंगा चलो नाइस ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ओ गुड 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 हाँ बड़ा ओ वाह जी वाह आ तो कमाल ही करता ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਬਰਨੌਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਈਏ ना कौन नहीं समझता अच्छा आप पंजाबी नहीं समझते अब मैंने क्या बोला है हिंदी बोली है ना हाँ चलो मिक्स मिक्स में करेंगे हम कोई बात नहीं तो सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करदा पुडा इनकलेव दे इस वैलफेयर सोसाइटी दा जिस दे प्रेजिडेंट राजदीप सिंह जी हैं ते बाकी मैंबर साहिबान सारे पहुंचे हैं साडे गुरमोहन वालिया जी भी साडे दरम्यान है डॉक्टर अमरजीत ग्रोवर जी हैं प्रिंसीपल साहिबान ने साडे और बहुत सारिया शख्सियतां नूं मैं जानदा बहुत धन्यवाद है तुहाडा तुसीं ब्लैसिंग्स दित्तियां प्रिंसीपल साहब इधर भी बैठे हैं तां तुसीं एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो ते अज दिन भी बड़ा वधिया दिन इन द सेंस के टुडे इज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व वातावरण दिवस है आज और विश्व वातावरण दिवस सानू की मैसेज दिंदा कि आपां सारियां ने रल मिल के अपने वातावरण नूं संभालना है अगर असीं संभालांगे बेटे तुसीं साडे तो सिख लोगे अगर असीं संभालांगे तुसीं साडे तो सिख लोगे तुसीं सिख लोगे तो अगे सिखा दोगे सिंपल जी फंडा है राइट तो इसलिए ये सारे काम किए जाते हैं और वो सोसाइटीज वो पेरेंट्स वो टीचर्स बड़े ही ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 2193 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 2193 ਟਾਈਮਸ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਪਲੇਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटे उसनू मैं तुहानू लिंक करूंगा और ये सारा वर्ड है वो बेस किस से है मैथमेटिक्स से द होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स विदाउट मैथमेटिक्स नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड देख लो कोई भी चीज असी तैयार करनी है मैथमेटिक्स नाल होगी ईवन कि साडी बॉडी है ना जिहड़ी ह्यूमन बॉडी वो भी पूरा मैथमेटिक्स है बेटे किस तरह मैथमेटिक्स है नंबर ऑफ बोन्स
206 206 ए लिसन गुड़िया, ए गुड़िया क्या कर रहे हो? मुझे सुनना है या आपको कुछ सुनाना है? अब तो मुझे सुना रहे हो, ऐसे कह रहे हो कुछ हो गया। कोई बात नहीं, गिरने दो ना, फिर फोकस मेरे पे रखो ना, मैं आया हूं ना आपसे मिलने। हैं गिरता गिरने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो इन सब बातों को। अभी बोलेगा नहीं कोई मेरे लेक्चर में, हाँ किसी को दिक्कत है तो यहां से उठ के बाहर जाओ, बाहर बात करके फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लासरूम में नहीं। आपको मालूम है लक्ष्मण जी बारे सुने? टीचर ताड़ियां लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी बारे सुने? लक्ष्मण जी, अरे जान दे लक्ष्मण जी कौन थे? लक्ष्मण जी बताओ। राम जी के, हाँ वो बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे इंसान थे, महापुरुष जिसको बोलते हैं हम। उन्होंने सीता माता को क्या कहा था कि ये मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे बाहर नहीं आना, मर्यादा कि इससे बाहर नहीं आना, इससे बाहर आ जाए नुकसान हो जाएगा आपका। उन्होंने शिक्षा दी हमें समझाने के लिए, लेकिन वो जो लाइन थी ना, रावण जो था वो बड़ा चालाक सीगा रावण। उन्हें देखा बड़ी मतलब ही लर्नड पर्सन सीगा, उन्होंने पता लग गया भी ये लाइन खिंची हुई है, जे मैं इसके अंदर गया था मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया, चालाकी खेडी और सीता माता नु बाहर बुला लिया चालाकी खेड के। और जिवें सीता माता बाहर आए वो रावण दे उस च फस गए। पर जे वो ना आंदे, मर्यादा च रहिंदे, फिर उन्होंने कोई हथ भी नहीं लगा सकता सीगा, ठीक है ना। तो इस करके की होया कि मर्यादा जो तुहानू सिखाई जांदे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हैं, चाहे वो साडे एनवायरनमेंट नू सेव करन दे रूल्स हैं, चाहे वो तुहाडे पढ़न दे रूल्स हैं, चाहे वो तुहाडे क्लास दे विच बैठण दे रूल्स हैं, यू मस्ट फॉलो दोज रूल्स। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि साडे स्टूडेंट्स नू बहुत कुछ आंदा है, बड़े मेहनती हैं, बड़े इंटैलीजेंट हैं इंडियंस, लेकिन एक चीज नहीं आंदी सानू ये नहीं पता लगता असीं बैठे कित्थे हैं। बस इट्स अ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम्स ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। टीचर पढ़ा रहा हुंदा और बच्चे अपनी गल्लां च लगे हुंदे, तो उन्हां नू की दसीए असीं, ठीक है ना। जिन्नी देर बैठ सकते हो, 40 मिनट का पीरीयड हुंदा, 35 मिनट टीचर नू मिलदे हैं सारे पढ़ाउण दे लई, तो उस 35 मिनट नू अच्छी तरह नाल समझो। और तुहानू सारिਆਂ नू एक गल कही गई होगी, घर दे विच हुण भी कहंदे होणगे तुहाडे पेरेंट्स, ए ध्यान नाल सुण। किन्ना किन्ना नू कहंदे? रेज योर हैंड्स। सब नू कहंदे? ओ माय गॉड, तुहानू भी कहंदे? तुहानू कुछ नहीं कहंदे भी ध्यान नाल सुण, बी अटेंटिव इन द क्लास? तुहानू भी कहंदे? तुहानू भी कहंदे? दैट सो नाइस। ਤਾਂ बेटे मैं इस ते ਜਦੋਂ रिसर्च किया ना भी ये क्यों कहते सानू ध्यान नाल सुन, बड़ा मजेदार आंसर आने वाला है, सुनियो ध्यान नाल। फिर मैं कहता ध्यान नाल सुनियो। ते तुहाडा कोई क्वेश्चन हैगा? जब तक क्वेश्चन नहीं ना राइज हुंदे मन दे विच, ਇਹਦਾ मतलब यू आर नॉट इन द क्लास। क्वेश्चन आना चाहिए, सर आई वांट टू आस्क वन थिंग, ठीक है, तो क्वेश्चन आना चाहिए सी, सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ध्यान नाल सुनो। एक ही चीज है, सर ये समझा दो प्लीज, क्योंकि टीचर इज देयर टू हेल्प यू, कि सर ये समझा दो ये की हुंदा, ध्यान की हुंदा, ये ध्यान नाल किवें सुनिया जांदा है। तो फिर जो मैं इस ते थोड़ा जिहा काम कीता ना, तो मैनूं समझ आया भी ध्यान ते सुनना दो अलग अलग चीज़ां, एक ध्यान एक सुनना। सुनता सी रहे हैं, कन्न खुले हैं, कोई ढक्कन नहीं लगाए रब ने, है ना, नहीं तो असीं क्लासरूम च भी ढक्कन बंद करके बैठ जा करते, है ना। तो ये खुले ही है, लेकिन सानू की चाहिए? फोकस, ध्यान चाहिए। वो ध्यान की है बेटे, एक तुहाडे कोले कॉन्वैक्स लेंस, हैव यू एवर सीन कॉन्वैक्स लेंस? देखिए तुसीं? बलजीत मैडम फड़ाए ऊपर वाले हाँ ये थैंक यू। बलजीत मैडम ते मैं इकट्ठे काम करते कल्याण स्कूल च रिटायर हो गए। ये देखो, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप, इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। ये चीज़ों को वड्डा करके दिखाता है, जो इसमें असीं इस तरह करते हैं ना तो वड्डा करके दिखाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम हैविंग दिस कॉन्वेक्स लेंस, एक मेरे को अखबार दा टुकड़ा है, कागज, अखबारी कागज है, एक मेरे को लेंस है, एक बहुत अच्छी तरह दे नाल सन निकलिया होया है,
ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਾਗਜ਼ ਜਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ? ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਲੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਸਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ तो फर्स्ट प्राइज फॉर दिस। बहुत अच्छा आंसर दिता है बच्चे ने। बस यही समझना है भी उसने ये नाल दी नाल कहता ना, कईयां दे दिमाग च है भी कागज जल जाएगा। अरे पकड़ के खड़े रहोगे लेंस नू, कागज नू, धुप दे विच, कागज थोड़ा जलेगा। कागज कदों जलेगा? जदों उसनू असीं ते क्लासरूम दे विच तुहाडे कोल सारा कुछ हैगा बट एक फोकस नहीं हैगा। एक फोकस नहीं हैगा। एक फोकस ले आओ बेटा, फोकस ले आओ, यू विल अचीव एवरीथिंग। हर चीज मिलेगी दुनिया दी, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती तुहानू, बट ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज फोकस, ध्यान। इस नू मैं ध्यान कहना। ध्यान वैसे की हुंदा है कि जिस तरह ये सर बैठे हैं ना, ये बैठे हैं अपना मस्त, ये मेरे गल्लां सुन रहे हैं, नाल भी इन्हां दे कोई बैठा हो, इन्हां नू पता है कोई बैठा है, पर इन्हां नू ये नहीं पता भी कौन बैठा है। इस नू ध्यान कहा जाता। ये तो पता भी कोई बैठा है, पर कौन बैठा है ये नहीं पता। ठीक है, इस नू ध्यान कहा जाता है। इसलिए तुहानू कहा जाता है कि ध्यान ते सुनना जदों इकट्ठे होणगे ना, फिर कुछ बनूंगा। क्या बनया? अंडरस्टैंडिंग। जदों ध्यान ते सुनना इकट्ठे होणगे तो तुहानू की आऊगी? समझ आ जाऊगी। की आ जाऊगी? समझ। अच्छा, टीचर नू किवें पता लगूगा भी मेरे स्टूडेंट नू समझ आ गई? तुसी बोलोगे नहीं कि सर यस सर वी गॉट इट, नो, तुसी की कर रहे होंगे? तुसी अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहे होंगे, आई कांटेक्ट तुसी इस तरह कर रहे होंगे। आज समझ आ रही है। बोलोगे नहीं, लेकिन इस तरह कर रहे होंगे तो टीचर उत्थों फिर फेस रीडिंग करके आइडिया लगा लेंदा भी मेरा लेक्चर अच्छा जा रहा है, बच्चे नू समझ आ रही। और जेड़े बच्चे नू नहीं समझ आ रही, टीचर कहता है स्टैंड अप, दस मैनू की करा रहा सी मैं। टीचर का सब ते ध्यान हुंदा। ठीक है ना? तो फोकस दे विच की है, सानू की मिलिया? ध्यान ते सुनना इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके समझ बन गई, समझ इकट्ठी होगी। हुण किन्ने पीरियड लगते हैं? किते 8 लगते हैं, किते 9 लगते हैं, है ना? हाँ, 8 भी लगते हैं, है ना? वो सारे पीरियड, कोई पंजाबी का, कोई इंग्लिश का, कोई साइंस का, कोई मैथ का, सारी समझ इकट्ठी होनी शुरू होगी। तो जो समझ इकट्ठी होंदी है उसनू असीं की कहंदे हैं? नॉलेज। की बन जाती है? नॉलेज। और जिस बंदे दे कोल नॉलेज हुंदी है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? हाँ, नॉलेज इज पावर, ये भी हैगी है। एक उस दे विच सब तो पहला नॉलेज जिस दे कोल आ जाऊगी ना, उस च आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बड़ा मिसिंग है साडी इस स्टूडेंट्स लाइफ दे विच। स्टूडेंट्स दे विच बड़ा मिसिंग है। जे किसी ने मैं कहूंगा ना कि तू ये वाला चीज करके दिखा दे, तू आंसर दे दे, वो उठता ही नहीं है, क्लास दे विच आंदा ही नहीं है। ठीक है सर, तुसी कर दो बस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज रिक्वायर्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जिथे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उत्थे सक्सेस आएगी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सिंपल थिंग इज ध्यान नाल सुनो। किस दी गल सुनिए? पेरेंट्स एंड टीचर्स। और तो किसी दी गल सुननी नहीं असी। किस किस दी गल सुननी है? घरे पेरेंट्स सी और स्कूल दे विच टीचर। जो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज ते अपने प्रोफेसर साहबान दी सुनो। बस इन्ना कम है। हाँ, ओ वेरी नाइस। तेरे तुझे प्राइज मिलेगा। इधर इधर इधर। ये यार मजा लिया था, तू मेनू करेक्ट करता अज। फिर तू पेरेंट्स कही जाना। इधर देखो, ये इस तरह सीखते हैं एक दूसरे तो। हाँ, ये ध्यान। वेल डन, वेल डन, वेल डन। हाँ, एल्डर्स की, या बिल्कुल करेक्ट, एल्डर्स की बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स है सारा। सारा क्या है? मैथमेटिक्स। देखो, कोई भी आपां नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, राम राम करते हैं, वाह अल्लाह करते हैं, कुछ भी कहने हैं, तो वो क्या है? सारा मैथमेटिक्स है। मैं एक नंबर, तुसी दसना भी वो नंबर क्या है, राइट? जल्दी नहीं करनी, आपको टाइम मिलता है, जल्दी नहीं करनी। अब क्वेश्चन सुनो, अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन सुनो,
वो तो हो गया, मैंने एक नंबर लिखा। अब इस नंबर के बारे में बताओ मुझे, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है आपको? ये 108 108 चीज़ां या कोई भी चीजें हो सकती, काउंटिंग दस सकता है, और कुछ हाउस नंबर हो सकता है। वेरी गुड। राम राम क्या कैसे करते हैं? 108 से राम राम कैसे एक मिनट 108 से कैसे राम राम करते हैं? क्यों करते हैं? वेरी गुड, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए। मेजरमेंट लेने के लिए हो सकता है। अरे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 108 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਮਣਕੇ 109 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ 108 ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 108 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ 108 ਇਨ ਦਿਸ 1 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਗੋਡ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਗੋਡ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓ ਹੀ ਵਿਲ ਸੀ, ਆਲਮਾਈਟੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਟਨ ਓਵਰ देयर दैट गॉड इज 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? तो व्हाट अबाउट 8 नाउ जो 8 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है परमात्मा दी माया। माया डजंट मीन पैसा, माया मीन्स जिन्ने माड़े काम है सारे माया, जिन्ने चंगे काम है वो सारे रब है। रब दा नाम है ना जिहड़ा, वो सारे चंगे काम है, और जिन्ने माड़े काम है वो माया करांदी है। लेकिन माया नूं अगर असी सिस्टमेटाइज करके यूज करते हैं, फिर वो सानू फायदा भी बहुत दिंदी है। तो ये की है? माया क्यों है? क्योंकि इस दे चक्कर च जिहड़ा एक बारी फस जाता है ना, फिर वो बाहर नहीं आ सकता। बस यस, वो फिर डिग के क्या बन जाता है? इनफिनाइट। बस ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੈਨਾ। तो व्हाट अबाउट दिस नाउ? 0। ਓਏ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 0 ਲਗਾਤੀ, ਵੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ 0 ਲਗਾਤੀ। ਰਾਤੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ 0 ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਲੱਗ ਗਈ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, तो 0 है ਜਿਹੜੀ, उसकी पूजा क्यों हो रही है? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद 1। ये रब दे नाल जुड़ी हुई है, ये रब दे नाल जुड़ी। अगर असी 0 हाँ, असी भी रब दे नाल जुड़ जाएंगे, साडी भी वैल्यू बढ़ जूगी। बस असी रब दे नाल ही नहीं जुड़ते हैं, राइट? किस तरह जुड़ना है रब दे नाल? किस तरह जुड़ना है? पाठ करके। कोई भी पाठ, ये जरूरी नहीं है भी हाँ जी सवेरे 2 घंटे ही लाने। वो कहते कबीर साहब कहते, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं फुन आद, भगतन सेती गोष्ठ जो कीनो सो लाभ। एक घड़ी 24 मिनट दी, कहते अद्धी घड़ी 12 मिनट दी, कहते उस तो भी अद्धी 6 मिनट, कहते वो भी नहीं हुंदा 3 मिनट, वो भी नहीं हुंदा 1.5 मिनट। बस 1.5 मिनट भी जे तुसी राम राम कर लिया, वाहिगुरू वाहिगुरू कर लिया ना बैठ के, तां तुहानू इन्नी मेंटल पीस मिल जाएगी। तुसी आप देखोगे, तुसी आप सोचोगे कि वाओ मेरे से इन्नियां चेंजेस आ गई, मेरे च पावर आने लग गई, पॉजिटिविटी आएगी। यस, ठीक है ना। तो ये जो 0 है ना बेटे, और परमात्मा कितना दयालु है, जिन्ने साडे पेरेंट्स दयालु है ना साडे ते, किन्नी कृपा करके तुहानू इत्थे के लेके आंदा भी बच्चे को सीख जाण, है ना, अच्छियां गल्लां सीख जाण बच्चे, तां साडा जिहड़ा हैगा अच्छा हो जाऊगा सारा समाज। तो सानू परमात्मा ने विचकार रख लिया बेटे, सेंटर दे विच। एक पासे आप बैठ गया, एक पासे उन्हें माया देती, और मर्जी सानू देती। कहना रोटी तुहानू मैं दे जाऊंगा, तुहाडी मर्जी है, मैनू मेरा नाम जपो, नहीं जपना ना जपो, मैं नहीं फोर्स नहीं करता किसी ने, ठीक है। तो कुछ लोग इधर गए, लेकिन मैक्सिमम लोग इधर चले गए।
ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਐ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ 8 ਤੇ 1 ਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋੜ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 8 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 9। ਨਾਓ ਦਿਸ 9 ਇਜ਼ ਨਾਮ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੀਉ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ, ਘਟ ਘਟ ਮੀਨ ਸਰੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਕ, ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੱਖਣ, ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੱਸੀ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਘਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨੋ, ਇਟਸ ਅ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਵੀ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਫੋਕਸ। ਵਾਂਸ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਆਈ ਕੌਮ ਮਾਈ ਹੇਅਰ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮਾਈ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੰਘੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਬਸ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਘੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 36 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ। तो 9, I will show you. I speak out any 2-digit number. 1 and 8. 1 and 8. और बोलो बेटे, आप बोलो 2. 90. Very good, very good. Any एक और 14. 14. Yes. देखो बेटे, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਵੀ everywhere is 9. 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. 4 plus 1, 5. 5. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। 8 plus 1, 9. Every time you will get 9. कोई भी नंबर लिखोगे उस नु ऐड करके उस नु सब्ट्रैक्ट कर लोगे, you will get 9. Write down any 3-digit number now. Speak out 3-digit number. Wow. ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 406। चलो बस 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 ये देख लो ना, 1 मिनट सीख लो, वो करे जाके करी जाए सारा कुछ, शाम तक याद रहूगा तो सारा कुछ लिख लेना कॉपीज पे जाके। अच्छा, नाउ 3 3 3 ऐड करो, 9 सब्ट्रैक्ट करो। नाउ 406, 10, 4 plus 6 10 हो गया ना बेटे। 10 सब्ट्रैक्ट करो, हुण ऐड करो। 3 ते 2 5 ते 4, 3 ते 9 12 ते 6 18, 8 ते 1। हर जगह नाम हैगा, हर जगह। ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। वृंदावन में, यस, सब जगह है, सब जगह एक। लेकिन सानू नहीं ना समझ आ रही, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨੀਅਰਲੀ 40 ਇਅਰਸ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜੇ, 40 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਦ ਐਫਰਟਸ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਐਨੀ 3-digit ਨੰਬਰ, ਬਟ ਦ ਨੰਬਰਸ और digits must not be identical नहीं होने चाहिए। हाँ बोलो, नंबर बोलो बेटा। 798 208। चलो बस 2 कर लिया ਆਪਾਂ। ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਆਨਸਰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। दोनों नंबर ਵਿੱਚ 8 ਹੈ। गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी नाइस। पर चांस 8 आ गया, कोई गल नहीं।
नाउ रिवर्स इट, अगेन रिवर्स इट, नाउ सब्ट्रैक्ट इट, and every time you will get 9 in the center. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਵੀ 9 ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ 9 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6th 7th 5th ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 4th ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ a 3 digit greatest number। oh my god, इसका मतलब 9 ਵੱਡਾ ਹੈ, इसका मतलब 9 इसका मतलब ਨਾਮ ਬਸ ਜਪ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਰਿਵਰਸ these numbers। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ 30 ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20। ਫਿਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। तो ये सानू बहुत कुछ है पता, लेकिन ਅਸੀਂ यूज ही नहीं करते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? 18 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, 18 ਦਿਨ। ਔਰ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਕਿੰਨੇ ਆ? 18 ਹੀ ਅਧਿਆਏ ਆ। 8 + 1 9। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ 8 + 1 9। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सबका मालिक एक है, एको है भाई, एको है, ठीक है। एक ओमकार, हाँ यस, मतलब एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन सानू नजर नहीं आंदा, ठीक है ना। सानू सारियां चीज़ां दो दो नजर आंदियां, लेकिन अगर उसनू असी एफर्ट्स करांगे तो दो तो एक भी बना सकते। राइट सर, आयो एक मिनट पकड़ियो, मैं एक एक्सपेरिमेंट याद आ गया मैनू, करो आ जाओ इत्थे, आ जाओ नाल माइक रखियो। हाँ बेटे, बिटिया तू खड़ी हो, बहुत बहुत अच्छा तू क्वेश्चन कीता सी। ये दो अपने दोनों अखां दे उत्ते लगा ला पुत, ठीक। हाँ जी। कितने सर्कल नजर आ रहे तुझे? दो। दो। इनू कितने सर्कल नजर आ रहे हैं? दो। तुसी आप भी कर सकते हो, करे एक पेपर लो, कागज नू रोल कर लियो इस तरह। राइट, इस तरह बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, इस तरह दो नजर आएंगे। तो बेटे हुण थोड़ी मेहनत करो, हुण दसो आंसर। सर्कल दो ही हैं, होल दो ही हैं, लेकिन वो बिटिया कहती मैनू एक दिख रहा है। द्वै ते एक रूप होए गयो। गुरु महाराज की कहते हैं, असी दो सीगे लेकिन दो तो एक हो गए। किवें हो गए? मेहनत करके। इसने की किया, इन्हों दो दिसते सीगे, लेकिन आहिस्ता 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 ओ एक हो गए। क्यों बेटे, सच में एक है? हाँ जी। तो ये है एक का कंसेप्ट। सर तुसी भी देख लो, देखो दो है ना, हुण नेड़े नेड़े ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। अखां दो हैं पर देखदियां एक हैं। अखां दो हैं, दो रेटिना है, लेकिन देखते एक, ठीक है ना। मजेदार। आपके हाथ में होल भी कर दें? बोलो नहीं। नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। किसी ने होल कराना है अपने हाथ से? आ जाओ, आजा आजा, बस कोई, मैं बताऊंगा आपको। कुछ होल करवाना है किसी ने? अब रेडी हो गई, आजा। देखो इस तरह डरिया ना करो। जो टीचर कहता ना, जो पेरेंट्स कहते हैं, फिर उस वेले नहीं डरना, क्योंकि असी तुहाडे लई कुछ माड़ा नहीं सोचते, ठीक है ना। असी अगर तुहाडे कोल हां तां असी तुहानू कुछ सिखाण वास्ते कर रहे हां। ये नहीं है भी इस बच्चे दे हत्थ च मोरी करके हुणे मैं खून कढ दूंगा। नो,
ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਓਕੇ, ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ? राइट ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੈ? राइट हाँ। लेफ्ट लेफ्ट छेती समझ आ गई, छेती समझ आ गई। अगर राइट में ही कर दूं तो क्या होगा? आई ट्रस्ट यू ट्रस्ट ठीक है, तो पकड़ो, आंखें ऊपर लगा लो, उधर वाली उधर वाली उधर वाली आंख, एक आंख ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ? ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? हाँ जी ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਜ ਲੈਣਾ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਹਟਾਣਾ ਨਹੀਂ। अच्छा सॉरी 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 हाँ, चल खोल दे अख। होल हो रहा है इसके अंदर इसके अंदर होल हो रहा है? हाँ जी पक्का? हाँ जी हाथ के अंदर? हाँ जी ओ माय गॉड, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। उस होल में जो हाथ में होल है उसके अंदर क्या नजर आ रहा है तुझे? पेंसिल पेंसिल। लेकिन पेंसिल कितने है देखो तुसी, दिस इज साइंस। साइंस साडी हेल्प करदी है। लोकां ने कहता भी साइंस और धर्म दा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन साइंस तां ਇਹ कह रही है भी मैं तां आप ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। and science word originates from scientia which means to know about something is science। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ क्या है? साइंस। ओके, तो साइंस भी पढ़ो और अपने धर्म नाल भी जुड़े रहो, तो it will help you a great, right? मैं भी देख रहा भी धुप भी आ रही है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ, right? now what is this? किस काम आएगा? खाना खाने के। कौन है? हाँ, इंडियंस आर वेरी वेरी नाइस। खाना तो जितने मर्जी लियाओ साडे ਲਈ, मैं कहना परवाह नहीं करते सी। हैं? आ जा आ जा। पास उससे साउंड हीलिंग देखा था या किया था? देखा था ना, मेरे एक फैमिली फ्रेंड है वो साउंड हीलिंग का उनका एक वो है, वो करते हैं साउंड। तो आपने कभी ये कोशिश की कि उनके पास जाओ और उनको कहो कि मुझे भी सिखाओ? मैंने एक बार उनसे किया था, उनसे सीख के किया था, तो फिर आज करके दिखा ना। आज ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ। मैं देखा ਸੀ ਨਾ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਪੜੋ, ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਾਓ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਏ ਮਮਾ ਆਈ ਐਮ ਯੋਰ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਸਟਿਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਏ ਲਿਸਨ, ਏ ਗੁੜੀਆ, आ रही है ना साउंड? आ रही है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो जाती। हुण अगर मैं इसनूं इत्थों पकड़ ला, साउंड तो आ रही है लेकिन मजा नहीं आ रहा। अब साउंड भी आ रही है और मजा भी आ रहा है। ये एक बहुत जबरदस्त काम आता है, साउंड हीलिंग। ये इसके ओए आप समझ नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूं? बेगर, आई एम बिहेविंग लाइक एन बेगर, प्लीज हेल्प मी। कुछ दे दो मुझे, कुछ दे दो, मैं तो सिखाना है। ये झूठा नहीं मैं पीना है। ठीक है, थैंक यू। ये होना चाहिए अपने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ हर रोज 1-1 रुपया इकट्ठा करिया करो अपने पेरेंट्स तो लेके।
1 रुपया 1 रुपीज एवरी डे, और ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ 30 ਰੁਪੀਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਚੇਅਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। हाँ बेटे, ये देखो ये क्या है, ओ बेटे इधर आ। वो देखो, क्लैपिंग करो इसके लिए। हर रोज 1 रुपी लेता है, 7000। ये इसको भेज, इसको 7000 रुपीज हो गए हैं इसके पास, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। आजा बेटे, उसको भेज उसको। ये देखो, ये जिसको आप बाउल समझ रहे हो ना, ये बहुत सारे काम आने वाला है। ये एक्चुअल में है क्या, ये देखो। टोपी नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं है, ये ब्रेन है हमारा। ये मुद्दा वजिया पे टीचर के पास जाते हैं, सब कुछ इधर उधर चला जाता, पेरेंट्स के पास जाते हैं इधर उधर। इसको सीधा ही नहीं करना आया हमें, इसको आप सीधा करके टीचर को दो कि टीचर मैं आपके साथ हूं। पेरेंट्स, मैं जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा, पर मुझे बहुत बड़ा अफसर बनना है, बना दो प्लीज। बस जैसे ही आप मांगोगे ना, तो पेरेंट्स भी देंगे और टीचर्स भी देंगे, और जो सोचोगे वो ही बन जाओगे, राइट। फिर की करते हैं ਅਸੀਂ पीटीएम बुला लेने हैं कि ये दिमाग तो बड़ा अच्छा है, बैठ बेटे, कि दिमाग तो बड़ा अच्छा है जी, ਤੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਟੀਐਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਨ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਧਰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਲਿਆਓ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ पेरेंट्स और टीचर्स ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ देखो, ब्रेन वही है और टीचर भी वही है, ब्रेन भी वही है, टीचर भी वही है, लेकिन वही ब्रेन ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਬਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਰਫ ਵਰਕ ਹੈ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਨਸਿਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, है ना। ये समझ आ गया। और टीचर तो जो चाहे वो कर सकता है, पेरेंट्स जो चाहन वो कर सकते हैं, लेकिन तुसी सपोर्ट करो, राइट। आ देखो हुन पकड़ इसको, पकड़, आजा, इसको रख दे। देखो ये चिड़ी है, मरी हुई है ना, देखो आवाज आऊगी, पानी च पाके आवाज आऊगी। किहदी आवाज आऊगी, एनू बजाण दी। क्यों आऊगी, आवाज तो मैनू भी पता आऊगी, पर क्यों आऊगी, रीजन क्यों, साइंस क्या कहती है। पानी दे विच जद कोई
हाँ यस यस ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਾਬੈਕ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ। तो इसीलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰ ਨੇ, ਭਰ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਭਰ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਹਾਫ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। क्योंकि ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗੜਕਾਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। वेरी गुड। पर चेंज क्यों हुई? साउंड चेंज क्यों हुई? पहला था ये वाइब्रेशन तो हवा च भी हो रही सी। वेरी गुड वेरी गुड। साइंस, हाँ क्या साइंस? देखो पानी डल गया तो फिर पानी के उछलने की आवाज अलग है और वाइब्रेशन भी अलग होती है। गुड, फिर ऐसे करके आवाज चेंज बहुत अच्छी बात है। क्लैपिंग करो सब बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर दिए हैं। वेरी गुड आंसर्स। लेकिन इसके साथ एक एडिशन करो कि साइंटिस्ट ने सानू की दस्सिया कि जो हवा है ना, हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿੰਨਾ? 340 मीटर पर सेकंड। ਬਟ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 1480 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 1500 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਗॉट ਇਟ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਸਾਊਂਡ ਦੀ? 1500 मीटर ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਰॉड, ਇਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰॉड, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ जो ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6000 मीटर पर सेकंड। 6000 मीटर रख दो, इसको वहां रख दो। 6000 और इस जो साउंड आएगी देखो आ रही है ना, पर कंटिन्यूसली साउंड आए उसके लिए हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। क्या बोलता है? सेंटर ऑफ मास। बस अब बैलेंस हो गया ना। तो मैं कहना हुन्ना भी तुसी बैलेंस की करना है, तुसी सेंटर च खड़ जाओ, जिवें जीरो सेंटर च रखी सी, एक पासे पेरेंट्स एक पासे टीचर्स, दोनों ਦਾ बैलेंस कर लियो ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋਗੇ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? आई विल शो यू। हो गया टाइम सर? हो गया? थोड़ा लगा लिए ना, हाले ठीक है मौसम। हाँ और कर लिए थोड़ा जा काम अपा, जल्दी तो नहीं करे जाने दी। चलो थैंक यू। तो ये ना एक पाउडर लगाया बेटे, क्योंकि इस ते हथ जिहड़ा तिलसदा सीगा मेरा, स्लिप करदा सीगा, तो फ्रिक्शन ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ, ਕਾਰ, ਟਰੱਕ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਗਰੂਵਸ। ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਪਾਊਡਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ। आती रहेगी काफी देर तक। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस दे विच जिन्ने भी सब 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 के सब वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। बस अब तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब तक बैलेंस है ये तब तक आवाज आएगी। जैसे ही बैलेंस छोड़ा, इसलिए बैलेंस रखना। बैलेंस किस चीज का रखना है? एल्डर्स, मैं पेरेंट्स ना कहा फिर गड़बड़ हो जाऊगी। पेरेंट्स का
ठीक है ना। हुण इधरों साउंड नहीं आ रही बेटे, है ना, हुण इधरों साउंड नहीं ना आ रही। सो दिस इज द थिंग कि साइंस ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? सेंटर ऑफ मास। ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, these are called node points and these are called anti node points। ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਡ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨੋਡ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ। तो ये सेंटर पॉइंट है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਉਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰੰਪਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਉਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ एजेस वाइब्रेट कर, सिंपल सिंग हो गई, ठीक है। तो हर एक एक्सपेरीमेंट के पिछे ना बेटे बहुत सारिया चीज़ां सीखने वाली होंदियां, उन्होंने लर्न करना है ना। तो हुण मैं तुहानूं ये कहूँगा कि एक मेरे कोल गिलास है, उस दे बारे तुसीं मैनूं दसना भी ये की है, राइट। कांच का गिलास है। और आप कुछ पूछना चाह रहे थे मेरे से? सर फिर टाइम में से आवाज क्यों नहीं आती जब वो उसको फ्रिक्शन के साथ आती है, आवाज आती है, फिर मैं सुनती है, लेकिन वो शीशे बंद कितने होंदे तुसीं गाड़ी दे ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਟਾਇਰਸ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਸੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, फिर नोट करी। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चे ने क्लैपिंग करो इसके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है भी जो टायर है जेडे वो चलते हैं फिर आवाज क्यों नहीं आती? इन्नी आवाज नहीं आती इन्नी उच्ची, लेकिन उत्थे आवाज आती है, राइट। वेरी गुड। देखो मतलब कि जैसे शीशा खोलते हैं वैसी आवाज आती है, मतलब कि जब बंद होता है जैसे कि हमने मेहनत करी शीशा खोलने में तो आवाज आई, वरना बंद था हमने मेहनत नहीं करी थी तो आवाज। हाँ यस गुड। तो ये देखो ये गिलास है ना, तो मोस्टली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? कौन कहता हवा? इधर वो कहता हवा। लो सुन लो, सानू तो कुछ भी नहीं दता, देखा खाली गिलास है, वो कहता हवा। देखो साइंटिस्ट विच ही बैठे अपने, आसपास तो है ना, इसके अंदर ये कह रहा है मुझे दिखाई दे रही है, मैं क्या करूं अब? मैं तो इसको खाली गिलास बोल रहा था, मैंने कहा चाय घर में खाली गिलास दो, एक खाली कप दे दो, मैं तो यही बोलता हूँ, लेकिन ये कहता है इसमें हवा है। सर ये प्रूव करेगा अब इसमें हवा है। पानी चाहिए, लो पानी जिन्ना मर्जी लो बेटा। थैंक यू। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਓ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਓ ਯੈਸ, ਬਬਲਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ। ਆ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਬਲਸ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ। ਪੱਕਾ ਪਕੜ ਲੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਵਲ ਦੱਸ, ਹਵਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ? ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਪੱਕਾ श्योर। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਹਵਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਟਾਸਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਵਾ ਪੀ ਲੈ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹਵਾ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨਹੇਲ है ना, इनहेल करते हैं ना एयर, उससे ऑक्सीजन मिलती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर। हाँ तो फिर से आ जाएगी, फायदा क्या हुआ? ये अभी दिखाएंगे ना फायदा क्या हुआ, इसीलिए तो आया हूँ। लो जी,
हवा पीने का तरीका सीख लो और रोज डेली एक्सरसाइज कर रही है सवेरे उठ के, और थोड़े जो लंग्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे। राइट, इस तरह करना है, मुंह ते लगाना है, यस सर। अंदर खिंच ले, अंदर अंदर करते हैं बहुत करते हैं। करते तो हो ना, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नहीं ना मालूम था आपको। हाँ, लगा 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 लगा, खिंच 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 खिंच, छड़ दे, हाथ छड़ दे। ओ देखो, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत सारे गिलास मार्केट च पे हैं, टुट भी जाऊगा कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा ला मूंह नूं, शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो हुण की होया कि इस दे विच जिहड़ी एयर सी ना, वो उसने अंदर सक कर ली, खिंच ली अंदर, तो इस दे विच वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसलिए वो हथ छड़ रहा है। तो इसदा मतलब सारी दी सारी हवा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अंदर चली गई, खाली हो गया। हुण गिलास खाली कह सकते हैं, सर दोबारा भर गया। दोबारा फिर भर जाना नाल दी नाल। ठीक है, ये देखो, पूरा दिन पीते रहोगे, खाली करना तो। ये देखो, ये सिरिंज है, इसनू खिंच लिया सी, कौन कहता है हवा आ गई? तूने कहा है हवा आ गई, ये प्रूव करके ये हवा ही है। मतलब कि अंदर वो खींचा नहीं, ये कैसे मानूं कि ये हवा ही है, और भी तो कोई गैस हो सकती है। सर हवा मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है। हवा अंदर आई। ये खिंचा है तो ना, ये देखो खिंचा है ना। गैसेस ही है अंदर आई। हाँ, क्योंकि आले दुआले क्या है बेटा, हवा है, इसलिए इसके अंदर की जाऊगी। सिंपल आंसर है। ठीक है, अगर इस तो हवा भी ना जान दईए ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈਏ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੋਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਏ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ, ਹੁਣ ਇਟ ਵਿਲ गो बैक। सर हर एक चीज को पूरा खुलने के लिए हवा चाहिए होती है। यस, अगर वो चीज बंद हुए तो और उसको खोलने की कोशिश करें तो वो खुलेगी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इसमें क्या है कि ये देखो, एयर स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग देखो, एयर स्प्रिंग देख रहे हो, दिस इज एयर स्प्रिंग, जो बात ये बेटा कह रहा था। स्प्रिंग भी ऐसे करता है ना। ओके, प्राइज लेके जा, गुड। नहीं कोई ना, क्यों, जे नहीं लेना तेरी मर्जी है। थैंक यू। ये बॉटल भी खाली है ना, देखा देते रख। ये देखो, ये बॉटल भी खाली है ना, खाली है ना, नहीं हवा है इसमें, हवा है, हवा में से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को यूज करूंगा मैं, इसमें मैं ये फ्यूल डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, फ्यूल। बस 2 स्प्रेज आर सफिशिएंट ऑफ दिस फ्यूल। ये फ्यूल डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब फ्यूल डालने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, आग लगाएंगे इसमें। यस, जैसे इसके अंदर आग लगेगी तो आप देखोगे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, गैसेस बनेंगी, गैसेस बनेंगी, प्रेशर मेंटेन होगा, प्रेशर मेंटेन होने से गैसेस इस साइड में आएंगी, बॉटल उस साइड में आएगी। इसको कहा जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ये देखना अभी, मैम ने मुझे बुलाया, उनके पास बॉटल पहुंच गई, कुछ महसूस कर रहे हैं बॉटल में। ये देखना अभी कैसी लग रही थी, बॉटल को टच किया, गरम, इसको बॉटल गरम लग रही थी। ओ, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि बॉटल गरम, लेकिन उसमें डाला क्या था, ये वाला। अब देखेंगे क्या हो रहा है, जस्ट वेट। हंसते नहीं है, डॉक्टर साहब को पूछो जब ऑपरेशन करते थे हंसते थे, मर जाएगा मरीज, सीरियसली काम करना पड़ता है, हंसना नहीं है कभी भी क्लास में। ठीक है, हाँ जी, कैसा महसूस हुआ आपको? अरे चेक करवाओ इसको, कभी ये कहता है ये गर्म है, इसमें भी वही डाला था, ये कहता है ठंडा है। यहाँ पे कंबशन होगी, यहाँ पे कंबशन नहीं। यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे कोई रिएक्शन। कौन सी क्लास में हो? 8th। वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्या बोलते हैं? इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। जहां हीट इवॉल्व होगी उसको,
और जहां पे एब्जॉर्ब होगी उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। ये दो रिएक्शन होने के वजह, इसकी वजह से जो घड़े में पानी रहता है ना वो ठंडा हो जाता है। घड़े में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जैसे यहाँ हमारे पोर्स हैं, पसीना आंदा ना बाहर, उस तरह घड़े ਦੇ ਵਿੱਚ पोर्स ਹੁੰਦੇ हैं। ਉਹਨਾਂ पोर्स ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ evaporation causes cooling। इसी तरह ਇੱਥੇ मैं स्प्रे ਕੀਤਾ, दिस इज अ volatile substance, सारे के सारा वेपर बन के उड़ गया, तो वहां पे अब्जॉर्ब क्या हो गया, हीट अब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। तो इसलिए इसको ठंडा लग रहा था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, बिल्कुल ओके है बच्चा साडा, ठंडे को ठंडा। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं बेटा, एक ही कंसेप्ट थोड़ा होता है। गुड, है ना। साइंटिस्ट ने बैठ के विचार किया कि ये हाँ क्या नहीं, अभी तो 8 ही है टोटल। अगर हम साइंटिस्ट की बात को साइड में रख के बोले तो 11 है। वो अलग बात है, लेकिन जो आपके बुक्स में है ना आंसर तो वही लिखेंगे ना, ठीक है ना। तो नहीं तो गलत हो जाएगा, टीचर ने मार्क्स नहीं देने फिर, है ना। ऐसे तो बहुत कुछ है, इतनी गैलेक्सीज हैं, राइट। तो ये देखो ऑब्जर्व करो कि अर्थ कहां से कहां घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे मूव कर रही है। तो आपने कौन सा प्लेनेट देखा हुआ है अपनी आंखों से, अर्थ, क्योंकि उसके ऊपर रह रहे हैं हम। हाँ अभी मैं ट्राई करता हूँ आपको, अगर अभी मैं आपको दिखा पाऊँ प्लैनेट्स। ये जुपिटर है, ये देखो लिखा हुआ भी आएगा इसमें, ये क्या है, जुपिटर। और ये ऊपर वाला क्या है, वीनस। और ये एक ऊपर आ गया मरकरी, और एक ऊपर और आ गया, ये सन आ गया। देखो सन वहीं पे है ना, अभी वो देखो सन वहीं पे है ना, तो वहीं पे लोकेट कर रहा है ये। तो सन के बाद क्या आ गया हमारे पास, सैटर्न। क्या आ गया, तो ये सारे प्लेनेट आप, एक ऐप है स्काई व्यू, कौन सी ऐप है, स्काई व्यू, उसमें आप खुद भी घर में देख सकते हो, राइट, सारे के सारे प्लेनेट्स। ओके हाँ देख सकते हो, लेकिन उसके वो आपको रिंग्स नजर नहीं आएंगे आंखों से। मतलब कि एक मूविंग स्टार देखा, मतलब कि 1 सेकंड के लिए मतलब कि आसपास रिंग्स अपीयर हुई, इससे मुझे कंफर्म हो कि वो यस गुड गुड। सर अगर हम देखते हैं नॉर्मली तो हमें उसकी रिंग्स क्यों नहीं दिखती? वो बहुत दूर है ना बेटा, डिस्टेंस की वजह से, ठीक है ना। सन जो है वो 1 लाख टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ, लेकिन इतना सा दिखाई देता है कि बहुत छोटा है, नहीं ऐसा नहीं। ओके तो आज दा ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगे प्रोग्राम? अच्छा नहीं लगे मतलब? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बस करिए हुन। हाँ थोड़ा सा और, कितना सा, इतना सा, इतना सारा, ओ माय गॉड। धूप नहीं लग रही आपको, घर नहीं जाना है? अच्छा चलो फिर सिखाता हूँ। अच्छा ऐसा 206 बोन्स काउंट करवानी सिखाऊंगा अब आपको मैं। यस कभी काउंट नहीं ना किया आपने? 206 बोन्स आज काउंट करवाएंगे आपको। ये मैं लेके आया हूं अपने साथ स्केलेटन, ये ऐसा होता है ह्यूमन स्केलेटन। इसके अंदर ये जो है ना सारी बोन्स हैं बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये फिंगर्स में भी हैं, ऊपर भी हैं, स्कल में भी हैं, ईयर में भी हैं, यहाँ पे रिब्स हैं, ये स्टर्नम है, ये सारा फीमर है, ये सारी बोन्स हैं हमारे पास। हाँ ये कितनी होती है, 206 बोन्स आर देयर। अब इनको काउंट करेंगे कहां कहां कितनी कितनी है, ठीक है, करें? अच्छा ये बताओ किसकी बोन्स काउंट करवाऊंगा, आजा। इसकी चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो आप आ जाना, ठीक है। 206 बोन्स इसकी काउंट करवाएंगे, ठीक है। जो मैं कहूंगा वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। आपको एक नंबर याद रखना है, 26, 27, 28 याद हो गया ना? हाँ। क्योंकि ये 26 के बाद क्या आता है, 27 के बाद क्या आता है, 28, इसलिए याद हो गया, सौखा ही है ना, ठीक है ना। तो हुण 26 कित्थों शुरू करना अपने पैरों तो। एक पैर दे विच 26 हड्डियां होंदियां, एक पैर च किन्नियां होंदियां, 26, और एक हाथ दे विच 27, एक हाथ च किन्नियां होंदियां, 27, और इस ऊपर वाले पोर्शन दे विच 28, 28। पंजाबी समझदे हो ना कि अंग्रेजी च बोलो?
हाँ 26 बोन्स इन 1 फुट, इन 1 हैंड, हैंड यहाँ तक। लेकिन जो पुराने लोग थे वो यहाँ तक हाथ को मानते थे, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तक हम मानने लगे, रिस्ट तक, राइट। तो यहाँ पे 28, 14 इन द फेस, 8 in the upper portion, 3 in this ear, 3 in this ear. 14 plus 8, 22, 22 plus 3, 25, 25 plus 3, 28. समझ आ गया? अब याद रख लोगे ना? 26, बोलते नहीं आप मेरे साथ? पैर कितने साढ़े? तो 2 बार बोलेंगे। 26, 26, 27, 27, 28, फिर बोलो 4 बोलो, नहीं 3 वो 28 में आ गए। दोबारा बोलो, दोबारा। अब ये अकेली बोलेगी, चल बोल। 26, 26, 27, 27, 28। ठीक है, कहां तक है ये 27? कहां तक है? यहां तक, ये याद रखना है, रिस्ट तक, राइट। हो गया जी। अब देखो ब्यूटी ऑफ और ह्यूमन स्केलेटन, ये जो बीच वाला पोर्शन है दिस वन, यहां तक ये पूरा, इसमें है 52। कितनी है? 52। वो दोनों पैरों की हड्डियों का जोड़ कितना आता है? 26 प्लस 26। तो यहां पर भी 52 है। ठीक हो गया? याद याद हो गया? अब ये रहेगी लेग्स एंड आर्म्स, यहां से लेकर यहां तक। मैं क्या कह रहा हूं, यहां से नहीं, यहां से लेकर यहां तक कितनी? 5। इधर भी 5 और इधर भी 5, इधर भी। ये याद रखने के लिए जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो उसमें स्कैपुला और क्लेविकल, ब्यूटी बोन जिसको बोला जाता है, वो भी काउंट करके ये 5 5 5 5। चल बेटे मेरे साथ, ओए 26 26 27 27 28 52 5 5 5 5। सारे बोल दो अब एक बार। 26, 26, 27, 28, 52, 5 5। वेरी गुड, इधर आ बेटे। यस, वेल डन बच्चे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में। वेल डन। ये बताएगी बिटिया, अभी बता बेटे। 26, 26, 27, 28, 27 27 28, 52, 5 5 5 5। एक्सीलेंट। देखो सबको मालूम हो गया, लेकिन एक टेस्ट कर रहा था मैं कि अगर टीचर की क्लास में हम ध्यान से बैठे सुन रहे हैं ना कोई भी बात, तो इमीडिएटली उसी टाइम में समझ आ जाती है हमें। इसको उसी टाइम में समझ आ गई ना? ठीक है ना? इन दोनों को मिलेगा प्राइस। लो जी। थैंक यू, थैंक यू। गुड गुड बेटा। तो ये नंबर ऑफ बोन्स काउंट करने का मेथड आ गया। तो हुण तुसीं घरे जाके फटाफट काउंट करवा देनी है हड्डियां। और सब तो पहला किहदियां काउंट करवाओगे? मैनू पता है। हाँ, मम्मा ही कहती है तेरियां हड्डियां मैं भन्नू। मम्मा की काउंट करवा देनी है जरूर। मम्मा उतनी है, कोई बात नहीं। मम्मा क्यों कहती है हड्डियां भन्नू? भी थानू अच्छा बना दे, ठीक है ना? भी अच्छे हो जाओ। ठीक, समझ आ रहे हैं? कंसेप्ट समझ आ रहे हैं दोनों? इजी है, मुश्किल तो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, हो चलाइए अपना बैलून भरने का। बस चलते। ये देखना बहुत बैलून भरेंगे ना। मेरे को पता है। भाई आपको तो सब कुछ पता है। इधर आ, इधर 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 आ। अरे इधर आ, बैलून भरने के अलावा और भी कोई काम होते हैं। इसको पकड़ ले, इधर आ जा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। वेरी नाइस। यहाँ खड़े हो जाना। जैसे मैं कहूंगा ना कि बाल को इसके ऊपर रख दो और बाल ऊपर चली जाएगी, है ना? इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ये क्या हो गया? ओह, क्या है? एयर प्रेशर, ग्रेविटी, और क्या है?
हाँ, कौन सा प्रिंसिपल है? तो फिर देखो प्रेशर सेम ही रह रहा है, वो ऊपर नीचे सेम ही हो रहा है, इसलिए वो एक ही जगह पे ठीक सारे साइंटिस्ट हैं, पढ़ा देंगे सारा कुछ। ये देखो, सुनो क्या हो रहा था, सुनो ध्यान से सुनो। ये प्रिंसिपल है बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किया कि हमको बताया कि एरोप्लेन्स को अपलिफ्ट कैसे मिलता है, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ये कहते, बर्नौली कहते कि ये पेपर कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। न्यूटन ने ये बताया था एवरीथिंग विल गो डाउन, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन बर्नौली आके कहते कि इसको ऊपर भी ले सकते हैं हम। कैसे? ये ऊपर जाएगा एयर की वजह से। इसके ऊपर हवा तेजी से लगाते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं एयर की, तो क्या हुआ? यहां पे प्रेशर कम हो गया और नीचे तो प्रेशर उतना ही था, उसकी वजह से इसको क्या मिल गई? अपलिफ्ट। इसीलिए एरोप्लेन को रनवे के ऊपर दौड़ाया जाता है बहुत तेजी से, तो फिर उसको क्या मिलती है? अपलिफ्ट मिलती है। उसके बाद इंजन काम करता है। इसी वजह से ये जो है ना, ये जो बॉल थी, इसके ऊपर एयर का प्रेशर हमने बढ़ा दिया। एयर का प्रेशर इंक्रीज करने से, स्पीड इंक्रीज करने से क्या हुआ? प्रेशर साइड्स में कम हो गया, लेकिन उसके नजदीक वाली साइड में कम हो गया, लेकिन और दूर से जो प्रेशर है वो उतना ही आ रहा है, उसको वो बैलेंस करके रखता है। ठीक समझ आया सबको? थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बैठो। जैसे कि बारिश चल रही होती है, हवा चल रही होती है, ऐसे करके छाता भी थोड़ा ऊपर ऊपर उठने लगता है। हाँ, यस, आपका प्राइज बनता है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वेल डन, वेल डन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अरे जीत के हटी प्राइज। ये सोच रही है कि इतने आंसर दे दिए, प्राइज आ ही नहीं रहा। कौन सी क्लास में? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ऐसे ही अपना रखो क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो क्या है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, हवा है। और हवा है तो इसमें डालेंगे पानी। पानी पूरा भर गया है, ठीक है। अब देखना कि अर्थ के ऊपर भी पानी है, इसमें भी पानी है, लेकिन ये जो पानी है वो बाहर नहीं गिरने वाला। क्योंकि उसके ऊपर हवा ने ऐसे लेयर बना दिया। ये दो चीजें हैं, इनर्शिया भी है और इसमें दो चीजें हैं कि जब ये किसी चीज को हम सर्कुलर मोशन में लेके आते हैं ना, तो दो फोर्सेस वहां पे लगती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। ये पानी नीचे गिरना चाहता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अंदर की तरफ पुश कर देती है और वो बाहर ले जाती है उसको। इसीलिए अर्थ के ऊपर तो पानी इतना है, इसीलिए अर्थ के ऊपर इतना पानी है ना, वो गिर नहीं रहा। अर्थ तो इतनी तेज घूम रही है, पता कितनी तेज घूमती है? नोट कर लो, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मेरे को पता था। तो बताया क्यों नहीं हमें? बताया क्यों नहीं? बताया करो ना, जब भी कोई चीज पता हो खड़े होके बता दो। अब और भी कुछ पता है तो बता दे खड़ा होके। पता है तो बता ना। अरे और कुछ पता है बता, मैं तेरे लिए प्राइज भी लेके आया हूँ, बता, भाई अच्छा लगेगा मुझे। और नहीं पता, बस यहीं तक पता था। बच्चे होते हैं ना। सर अगर हम इस बॉटल के साथ करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, खाना डाइजेस्ट होता है उससे। वेरी नाइस, वेरी। अच्छा ये समझ आ गया। अब रॉकेट लॉन्च कर दे। यस, आएगा वो रॉकेट। वापस आएगा, देखते हैं। कंडीशंस फुलफिल होगी तो रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। इसमें क्या डाला मैंने? क्या डाला? पानी। क्या डाला? पानी। पानी डालने से बॉटल जो है वो हैवी हो गई है। क्या हो गई है? हैवी हो गई है। अब इसके अंदर एक वॉल से मैं एयर फिल करूंगा। क्या करूंगा? एयर फिल करूंगा। हाँ बेटे, अगर हम बॉटल के साथ करेंगे तो होएगा? ये बॉटल के साथ ही कर रहा हूँ बच्चे। नहीं, वो ऐसे वो जो आपने अभी करवाया था। कौन सा? उड़ने वाला। हाँ हाँ हाँ, बॉटल को बांध लो धागे के साथ, इसको रोटेट करो, होगा पक्का होगा। है? ग्लास से। गिलास से भी होगा, लेकिन गिलास को बांधना पड़ेगा, या फिर गिलास को ऐसे पकड़ के तेजी से घुमा देना, तब भी हो जाएगा।
गुड गुड गुड। ये अज नहीं छड़दे घरे जाके इसको रसोई रसोई सारी। मम्मी क्यों डांटेगी? मम्मी को बोलना हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो देखें। हाँ आ जाओ आ जाओ। आ देखो 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 देखो, इधर रॉकेट लॉन्च हो रहा है। सर पानी गिर जाएगा इसका। सुनो बेटा, एक मिनट रुको। सुनो 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 सुनो, जस्ट वेट। सुनो बेटे, इसमें क्या किया? बॉटल में क्या डाला? पानी। अब इसके अंदर सर क्या भरेंगे? एयर, हवा भरेंगे। हाँ। बॉटल टाइट हो जाएगी पूरी, और जब और हवा नहीं उठा पाएगी तब वो पूरी बॉटल का प्रेशर ऊपर भी चला जाएगा उल्टा। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए, वेल डन। तो इसमें क्या है कि एयर भरेंगे, एयर भरेंगे। इसके आगे क्या लगाया हमने? वॉल्व। क्या लगाया? वॉल्व। वॉल्व क्या काम करता है? एयर को अंदर तो जाने देता है लेकिन बाहर नहीं आने देता। इसको कहते हैं वन वे ट्रैफिक। वन वे, अंदर जा रही है चीज, बाहर नहीं आ रही, इसलिए अंदर हवा भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि एक कंडीशन पे आके वो प्रेशर से पानी को नीचे की तरफ करेगा और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फिर एक्शन में आ जाएगा, फिर रिएक्शन होगा बॉटल के ऊपर, बॉटल ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हो? अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। सर हवा भरेंगे इसमें, तेज तेज पर हो जी। और वापस नहीं आए हाथी। साइंस ढूंढ रही है कि वो हाथी कहाँ है भाई, कैसे चले गए। उसके बाद इनको मालूम पड़ा कि ओहो अच्छा ये एस्केप वेलोसिटी थी। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स बेटा जिससे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, सफिशिएंट है इतना आज? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी धूप भी आ गई है ना। सर अगर हम ऐसे इसको जो एक्सपेरिमेंट करा वो पंप से करा, अगर रॉकेट लॉन्च करना होता है वो किससे करते? इतना बड़े पंप? वो नहीं, उसमें फ्यूल डालते हैं, 3 तरह के फ्यूल डालते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। Thank you, Jaswinder sir, for your insightful session on science and mathematics. थैंक यू जी, Everyone, not even kids, we also got enlightened in this. थैंक यू सर, थैंक यू राजू, जितने ladies हैं, जितने थैंक यू सर, थैंक यू। एक एक बच्चों को पेशेंस पूरी सुनने के लिए। अगर ये मून पर करे तो? मून पे करें तो उसके वहां पे ग्रेविटी कम चाहिए, कम हो जाती है। 206 वोल्ट है है मेरी बॉडी में, 206 वोल्ट नहीं कि है ज्यादा है तेरे पास? क्योंकि मेरे पास टेलीस्कोप दिखाएं पहले। ये देखो, इसमें 2 टेलीस्कोप लगी हुई है, बाइनोकुलर है ना, ये टेलीस्कोप है, ये भी टेलीस्कोप है। अब इसको यहाँ से फोकस करना है और वहां तक, वो दूर तक, वो ट्री सबसे लास्ट वाला, उसके पत्ते काउंट कर लो। लो पकड़ो, देख पकड़ पकड़, इसके अंदर देख ना, इसके अंदर इसको फोकस कर ले और देख उधर, किधर? उधर कहीं भी। सर आपने कहा ये बॉटल रख देना। गिव अवे करते हो सर, आज तक आपने कहा था पेंसिल गिव अवे करते हो, आज तक कोई पेंसिल नहीं गिव अवे करी ये आपको मिलनी थी, ये आपको मिलनी थी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। हाँ लो, सारे बच्चे अगर केले खाने, केले खा लो। बढ़िया लग गया सर बच्चे, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हले हले बच्चे छोटे हैं देखो। हाँ, क्यूरियोसिटी बढ़िया, क्यूरियोसिटी बढ़िया। किन्ने इन्ने इन्ना यदि कर जाके। अच्छा इतने ऑटोग्राफ ले ले, इतने ले लो ऑटोग्राफ। थैंक यू थैंक यू। हाँ देवांगे, क्यों नहीं देवांगे। ओ सर मुझे भी चाहिए गिफ्ट। सर गिफ्ट गिफ्ट उसको मिलता है जो, चल दे देता हूँ आपको भी। मैं भी जा रहा हूँ। मैं खींच देनी है तुझे, बस इनमें क्लिक करना। बेटा तू नहीं सर मैं भेज दूंगी। ठीक है होगी। आज ये लेडीज ने आना ला लो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। कोई गल नहीं, लेडीज को होता है आओ जी, आओ आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹਾ, ਆਜੋ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਖੋਲ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਖੋਲ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਰਲਡ এনवायरमेंट ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।